and give me the response on the WhatsApp. I'll check and get back to you. Now you can see that if B is an on state, then your path will be this, and B is in off state, then your path will be this. So I got a solution from Sahil. Says that if B is an NC contact, yes, the B is an NC contact. Sahil, just think about it. It is a bit incorrect, a little bit incorrect. When B is on, B is an on state, but D is an on state. Yes, is, so just is on. Yes, correct. Sahil, your answer says that when B is in off state, your C is on, which is a bit incorrect. Okay, just change it a little bit. Almost correct, but not totally correct. And also A and B will not directly respond to. Yeah, A and B is correct. This is correct. A and B in combination is going to give you output of D. But just think a little bit about B. Just B is not only the factor 2 on C.
I need answer from every student, right? For this particular question. Even if it is incorrect, there's no issue. Okay. Uh, I think it's Khushbu. Khushbu, I'm afraid it is not correct. 20 student, one more student is left, right? Yes, Sahil, now it is correct. It is very correct. Good. Ritik, you have answered something and then deleted, I think. Mm, this answer solution is from Sachin. Sachin, A is on, B is not on, then your C will be on. Yes, it is correct. A is on and B is not on. No, Sachin, it is not correct. When your A is an on state and your B is on state, okay, for that case, you can say that your D is on, but your C will not be on the same state. Yeah, you need a different state for that. Yes, sir. Ritik, your answer is correct. Nayan, your answer is correct. Abhay, your answer is also correct. Varun, your answer is correct. Yeah, very correct. If B is on, D is on. Yes, and if B is on, Varun, if B is in the on state, then C is not you have drawn it correctly. A little bit more elaborative, but correct. But that rung of B and connection to C is incorrect because when B is on, your C is not on. You can't say that when B is in the on state, then your current is in the your C will get activated. Then Hitesh, your answer is correct. Shubham, if A is in contact B, now when B is in NO contact, then your D. Shubham, no, it is not correct because with your answer, if B is in on state, your C will be activated, but it is not going to happen. Shubham, it is not correct. Alok, your answer is correct. Ankush, your answer is also correct. B, A, D, yeah. Who's this? Hitendra. Yeah, your answer is also somewhat correct. Yes, your answer is also correct.
So Nidhi, kindly mention the in the last rung. You have not mentioned the contact type. Okay, whether it is A or B. Kindly mention that also. But it is almost correct. Bhanu, your answer is correct. Sahil has is saying that Sahil, your logic is always going to be false because for C, for a yeah, Sahil, your answer. Let us look at the all the situations for your answer. A little bit tricky answer, but good you tried this. Okay, let us just have look that how the solution can work. When A is on in the on state, your C should be on. When A is in the on state and B is in the off state, yeah, your C will be on. When A is on, your D will directly get on. Yes. When your B is in the on state, okay, okay, so B, this contact is not going to work. Yeah, perfect. Very good, Sahil. A very new kind of answer. Very new kind of your answer. Um, I'm happy that you have tried like this. Okay. Yes, this is much more optimal answer. But your answer is correct. Most of the answers are correct, and this is one of the better representation. Scan had given you had given NC contact to A. I think it's a bit incorrect. Why you have given an NC contact to A? If it would have been B, then we could have looked at this, and it might have been correct. A directly giving to D, combination of A with an NC contact of B is giving you C, yes, and the B is directly giving you, but B would directly give us D, okay, it will not provide us C, so this is a little bit incorrect. Muskan, you need to work on this too. Sahil is saying NC is B. Yeah, Sahil, I understood it that NC is B, and a very good answer for this particular question. Varun, yes, now it is correct. A, B, A, B, yeah. Adarsh, your answer is also correct, very correct. And Khushbu, now your answer is also correct. Okay. So I think most of you are aligned to this. Okay. So uh, yeah. So the only logic that was working is to get into a very illustrated manner. You can say that when your A is on, your D will get on. When your A is off, your D is going to get off. So this will be a NO type contact with D. If B is on, your D is going to be on, and if B is off, your D is going to be off. So this is going to be an NO contact with B. So for D it is correct. For A to be on and B to be in off state, your C can be N charge. So this can be an option.
Okay, your C can be on. Only this is an option. Okay, in order to get the C activated. Now, yes, very correct that you can just contact, give a particular contact, but the B will be not NC contact in both, I think, Sachin. B will be NO contact at one position and NC at one particular position. Sachin, kindly respond on the chat box. Did you get it? That it should be NO in B or B. Yes, sir. I get it. Yes, Shubham, now your answer is correct. And Muskan, I am a bit confused with your answer. Can you, did you get the solution for this? Because you have written A, but also then your logic is not working. And rest, I think all of you have done. Can this work also? Yeah, Abhay, Sahil had given a similar kind of solution and we have looked into it. Yes, it can also. सर साहिल Yes. वाले आंसर में एक सिचुएशन पे नहीं होगा ऑन। कौन सी सिचुएशन पे? सर जब बी एनओ कांटेक्ट है और बी जब वो एनसी है तब से ऑन हो रहा है, बट इसमें कुछ ऐसा नहीं है डायग्राम में। नहीं शुभम, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो सकता है कि बी एनओ कांटेक्ट भी है और एनसी कांटेक्ट भी है, मतलब बी 0 भी है और बी 1 भी है। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। तो किसी भी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि बी 0 भी है 1 भी है? नहीं हो सकता ना, तो इसलिए ये काम कर जाएगा, क्योंकि फिजिकली आपका बी या तो 0 स्टेट में रहेगा या 1 स्टेट में रहेगा। ठीक है ना? या तो वो 0 स्टेट देगा शुभम फिजिकली या 1 स्टेट देगा, तो वो फिजिकली पॉसिबल ना होने की वजह से ये लॉजिक काम कर सकता है, क्योंकि बी 0 और 1 स्टेट में साइमल्टेनियसली नहीं रह सकता, तो इसलिए वो सर्किट सी को एक्टिवेट करेगा ही नहीं। ठीक है ना शुभम? ओके। एंड इट कैन वर्क। कोई डाउट तो नहीं है शुभम? यू कैन क्लियरली आस्क। वेरी गुड दैट यू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो भी सकता है। मैं पहली बार पढ़ रहा था साहिल का सोल्यूशन, तो मुझे भी यही कंफ्यूजन आया था कि बी और बी बार को एक साथ, मतलब एनसी और एनओ कांटेक्ट अगर बी के साथ है तो सी क्यों नहीं? बट वो फिजिकली पॉसिबल है ना, क्योंकि या तो वो 0 स्टेट में रहेगा या 1 स्टेट में रहेगा। ठीक है ना? So it can work. Yeah. Very good that you asked this question. I highly appreciate your questioning on this side. Abhay, yes, your answer is also correct. This can work. We were already discussing about this only, and that this kind of circuit is working. This is a much more optimum circuit. I was just drawing the ladder logic in order to make it understand to all the students. Okay, you can optimize like this also. There is no issue. Abhay. Okay, so all are aligned. If there is someone who is not aligned, kindly respond no. If all are aligned, so kindly respond yes. Yes. Okay. 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 Let us move forward now. Now we have set reset also. Okay, so when set is activated, then the data value at output address is set to 1, and when S is not activated, your output is not changed. Okay, and when reset is activated, then data value at output address is going to be 0, and if S is not this is R, if R is not activated, then your output is not going to be changed. So this is kind of your output. Okay,
So let us say this is I0 dot 0. Okay, this is a state for Q0 dot 0. And you have I0 dot 1 and your Q0 dot 0. Okay, this is S and this is R. So it can set, it can reset. Okay, now when this is activated, you can see when both are 0, then this will be going to be your last state. Okay, now if your set is 0 and your reset is activated, so it will reset the value. That means your Q0 dot 0 is going to be 0. Okay, now when your I0 dot 0 is 1 and your reset, sorry, you can say I0 dot 1 is 0. Okay, so it is not going to reset the value, it is going to set the value, and your output for Q0 dot 0 is going to be 1. And when both are 1, then it is reset dominated and your output will be in the reset form, that is 0. Let me just repeat it. When both are 0, your output is not going to be set or reset, it will attain its last state. When your set is activated, okay, when your and this line is going to be activated, the current is flowing through your set cap and your Q0 dot 0 is going to be set. Okay, and it will be 1. Okay, when reset will be activated, it will be 0. When both are activated, then it is reset dominant and your solution will be 0. Okay, so write the logic to latch to output Q0 dot 0 and Q0 dot 1 with I0 dot 0 and unlatch it using I0 dot 1. Okay, now let us see the output. Let us just see quickly see, you can say the truth table associated to it. Now when I0 is 0, this is 0, then your Q0 dot 0 is going to be set. Sorry, when it is 0, neither this is going to work, neither this is going to work. And when I0 dot 1 both are 0, then neither this will work, neither this will work. Okay, so what will happen? It will attain its last state. It is going to attain its last state. Okay, now when your I0 dot 0 is 1, yeah, let me use a pen for this. Okay, now your I0 dot 0 is 0 for this particular state. So no current will be flowing from this. Okay, neither this will be activated, neither this will be. So your Q0 dot 0 is not going to be in the set state and your Q0 dot 1 is not going to be in the set state. But your I0 dot 1 is going to be 1, then your Q0 dot 0 is going to be in the reset state. So your Q0 dot 0 is now 0. Okay, and your Q0 dot 1 is also in the reset state, then it is also going to be in the 0. Okay, now when your I0 dot 1 is in the 1 state, okay, and I0 dot 0 dot 0 is on the 1 state and I0 dot 1 is on the 0 state, then what is going to happen? This is going to set both the values and it is not going to reset it. Okay, so what will happen? Both Q0 dot 0 and Q0 dot 1 will be in the 1 state. Okay, now when both are 1, then what will happen? Both Q0 dot 0 and Q0 dot 1 will get a set and reset instruction, but it is reset dominant. Okay, then your output is going to be 0. Okay, now my question to you is, if I'm using, kindly reply this question on the chat box.
So I have a Q0.0 and I have a common address okay, and for a particular truth table the value of I0.0 is 0, then 1, then 0. Now kindly draw the truth table for this particular system and send a solution for me. Okay, yes. एक बार रिपीट कर दीजिए अच्छा, इस एग्जाम्पल को या क्वेश्चन को? एग्जाम्पल अच्छा, मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ बेटा। देखो, सेट जो कॉइल है वो आपके आउटपुट, आपको पता है ना, हर एक कॉइल के लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस एसोसिएटेड है यहाँ पे। तो कुछ मैंने आपको मेमोरी के टाइप भी बताए थे और कुछ मैंने ब्लॉक के टाइप भी बताए थे। तो आप ये देखो कि इस पर्टिकुलर कॉइल के लिए आपका एड्रेस जो अलोकेटेड है वो है Q0.0। अब ये जो S कर रहा है वो क्या कर रहा है, इस एड्रेस के आउटपुट की स्टेट को चेंज कर रहा है। ठीक है ना? मतलब क्या हुआ, जब I0.0 1 होगा, अब आप मैं यही कंडीशन बताता हूँ आपको, ठीक है? I0.0 1 होगा तो होगा क्या, यहां से एक करंट फ्लो करेगा, ओके, ये पूरी की पूरी लाइन जो है एक्टिवेटेड हो जाएगी, ठीक है, इससे फ्लो करेगा, ये कॉइल एक्टिवेट हो जाएगी। ये कॉइल एक्टिवेट होने से क्या होगा, Q0.0 का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। Q0.0 का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ये वाली कॉइल, ये वाले पाथ पे भी करंट फ्लो होगा, इसकी वजह से ये भी सेट कॉइल एक्टिवेट हो जाएगी, इसकी वजह से Q0.1 का स्टेट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है ना, क्योंकि सेट कॉइल एक्टिवेट हो गई है और रीसेट कॉइल एक्टिवेट नहीं हुई है, क्योंकि इस सिचुएशन में आप ये देखिए कि I0.0 1 है, I0.1 जो है वो 0 है। ठीक है, अगर ये 0 है तो कोई फ्लो ऑफ करंट होगा ही नहीं इसके थ्रू, अगर नहीं होगा तो रीसेट कॉइल एक्टिवेट हुई नहीं है, और रीसेट कॉइल एक्टिवेट नहीं हुई है, केवल सेट कॉइल एक्टिवेट हुई है। इसका मतलब क्या है, Q0.0 का आउटपुट क्या आएगा आपका, 1, Q0.1 का आउटपुट क्या आएगा आपका, 1। ठीक है, अब मैं एक और केस इसका ले लेता हूं, इसके इरेजर यूज कर लेता हूं एक, या जब दोनों कॉइल एक्टिवेट हो गई, फिर देखते हैं हम उस केस में क्या हुआ। ठीक है ना, जब दोनों कॉइल एक्टिवेट हो गई बेटा, ठीक है, तो यहां से भी फ्लो आया तो ये कॉइल भी एक्टिवेट हो गई, लेकिन इस कॉइल के एक्टिवेट होने से ये एक्टिवेशन 1 देगा, ये एक्टिवेशन 1 देगा, बट रीसेट कॉइल भी एक्टिवेट होने की वजह से ये एक्टिवेट करेगा इसकी 0 कंडीशन को, कि ये 0 कंडीशन होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका रीसेट डोमिनेंट है, ठीक है ना। रीसेट डोमिनेंट का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको रीसेट कॉइल भी कह रही है, रीसेट कॉइल कह रही है कि Q0.0 को 0 करो, ठीक है, और यहाँ पे सेट कॉइल कह रही है कि इसको 1 करो। तो जो एड्रेस है, एड्रेस के पास कमांड जा रही है दोनों की तरफ से, ठीक है ना। अब जो भी डोमिनेंट होगा, जो भी डोमिनेंट स्टेट होती है हमेशा वो एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पे आपका रीसेट डोमिनेंट है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि 1x0 का कॉम्बिनेशन हो गया होगा, ठीक है ना, 1x0 का कॉम्बिनेशन हो गया होगा, जहां पे 0 डोमिनेंट रहेगा हमेशा। अगर प्लस होता है तो आपका 1 डोमिनेंट हो जाता है। इतना हमको डीप में सोचने की जरूरत नहीं है, हम केवल ये सोचते हैं कि जो डोमिनेंट स्टेट होती है, जैसे यहाँ पे रीसेट डोमिनेंट अगर मैं स्टेट बोल रहा हूँ, तो जो इंस्ट्रक्शन रीसेट से गया होगा वो डोमिनेट करेगा।
तो इसकी वजह से अगर दोनों 1 है तो इनकी स्टेट 0 और 0 होगी, ठीक है ना? तो इसकी स्टेट क्या होगी? 0 और 0, ठीक है? यस सर, यस सर, किसी को नहीं है ना? आई थिंक नाउ देयर शुड नॉट बी एनी डाउट. अगर है डाउट तो यू कैन एनी टाइम आस्क. ओके, I0.0 है तो लास्ट स्टेट लास्ट स्टेट 1 है तो 0 0 और फिर 0 हो गया तो 0 और 0. यस. मुस्कान इज करेक्ट, क्योंकि अगर 0 होगा तो लास्ट स्टेट पे ही रहेगा वो अपनी, और 1 होगा तो 0 होगा, 0 रहेगा तो भी 0 रहेगा. सचिन, इसमें Q0.0 और Q0.0 ही है, Q0.1 नहीं है. आई थिंक वो Q0.1 के डाउट की वजह से आपने आंसर दिया. 0 लास्ट स्टेज, 1 0 0 0. यस, वेरी करेक्ट. Nan, 0 last state, 1 is 0, 0 is 0. Yes, Nan, you are also correct. आप अज्यूम क्यों करोगे? आपको पता ही नहीं है. अगर आप कह रहे हो कि स्पेसिफाई कर रहे हो अज्यूमिंग 0.0 इज द इनिशियल स्टेट, तो आप अजम्पशन ले सकते हो, लेकिन आप लास्ट स्टेज का अजम्पशन क्या ले सकते हो? एक कोई प्रोसेस में कोई चीज वर्क कर रही है. वैसे एक सोचने वाली बात ये भी है कि हर एक पर्टिकुलर स्टेट पे चाहे इसको 1 दो या 0 दो, ठीक है ना, एक बार भी अगर इसकी सिचुएशन 1 आ गई है आउटपुट की, ठीक है, लेकिन हो ये भी सकता है ना पॉसिबिलिटी. एक देखिए, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. यहाँ पे हो सकता है कि एक और लॉजिक लगा हो I0.1 का, ठीक है ना, I0.1 का. चलिए, मैं इसका भी आप लोग सोल्यूशन दे ही दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए मैं आपको एक एडिशनल चीज और दे रहा हूं. लेट अस से Q0.0. आप दोनों के लिए एक ट्रुथ टेबल बना के देखिए आप. इस केस में आउटपुट क्या निकलेगा, आप बताइए. लेट मी जस्ट चेक द अदर्स आंसर्स आल्सो. I0.0, ठीक है. साहिल, खुश, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट. सुनीति, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट. Yes, Shubham, your answer is correct. Manu, your answer is correct. Kalpana, your answer is correct. Adarsh, your answer is correct. Abhay, your answer is correct. And Lok, your answer is also correct. Okay, now just give me the answer to this particular solution.
इसके लिए भी ट्रुथ टेबल बना ही लीजिए आप लोग। Then this is 0. If I00 is 1, this is 1, then this is 1. Very good, Ritik, very correct. There can be an indeterminate form. और अगर indeterminate form आती है तो हमको पता है कि हमने पिछली बार देखा था कि क्या बना हुआ आता है सोल्यूशन में। ठीक है, सो वी कैन नॉट से कि सिचुएशन रहेगी क्या। Q0.0 की पोजीशन 1 भी हो सकती है, आउटपुट आपका 1 भी आ सकता है। ठीक है ना। Yes, Hitesh, your answer is correct. Kalpana, your answer is also correct. It is undefined. अंकुश, आपने 00011 undefined. Yes, Ankush, your answer is also correct. Zero one zero indeterminate. Yes, correct. 010 undefined. Last state, yeah, you can say last state also. When both are 0, then how can you say it is last state? I0.1 is 0, your Q0.0 is not activated now, is not in the activated state now. So that state is going to get copied and it will not be last state. Okay. Shubham, because your present state will be 0 then. Okay, it will be addressed as 0. Yes sir. शुभम, आपने लास्ट स्टेट लिखा है ना। देखिए, I0.1 अगर 0 हो गया ना तो Q0.0 का एड्रेस भी 0 का ही चला जाएगा, तो वो उसकी एक डिफाइंड स्टेट हो गई कि वो 0 ही रहेगा। ठीक है ना शुभम? कैसे होगा? देखो, आप जब लेटर लॉजिक में जा रहे हो ना तो आपका लेटर लॉजिक रंग बाय रंग चलता है। ठीक है ना। और रंग बाय रंग चलने के बाद वो कंपाइल करता है। ठीक है ना। अब जो भी लास्ट स्टेट रही होगी वो पहली रंग में कंप्लीट हो गई होगी। I0.0 से जो पुराना स्टेट होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद दूसरी रंग स्टार्ट होगी। दूसरी रंग में क्या होगा, आपका जो दूसरा रंग है वो कह रहा है कि हमने Q0.0 का एक्टिवेशन देना ही नहीं है, तो वो डिफाइंड उस रंग की स्टेट को क्या सोल्यूशन देगा, 0 का, कि इसको फ्लो नहीं गया तो इसकी स्टेट 0 हो गई, तो वो स्टेट ओवरराइट हो जाएगी ना उसके ऊपर। और उसके बाद जब वो ओवरराइट हो गई तब कंपाइल होगा आंसर और उसके बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा, तो वो सोल्यूशन क्या होगा, 0। ओके सर। शुभम, मैं फिर से बता रहा हूँ, आई थिंक यू माइट हैव डाउट। सर ऐसे तो फिर जब दोनों में 1-1 होगा तो लास्ट में फिर ओवरराइड नहीं हो जाएगा? नहीं, 1 और 1 में क्या होगा, 1 और 1 वाली सिचुएशन में क्या होगा कि आपके दोनों 1 दिखा रहे हैं। ठीक है ना, दोनों 1 दिखा रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्टिकुलर स्कैन साइकिल में इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है ना, कि रीसेट भी एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है ना, रीसेट भी एक्टिवेट हो चुका है उस पर्टिकुलर साइकिल में, और सेट भी क्योंकि वो स्कैन साइकिल के हिसाब से इंडिटरमिनेट हुआ है, उसको पहले वाली राइटिंग को ओवरराइट उस साइकिल में नहीं करना, वो पहले वाले को राइट करेगा। जो शुभम वाला केस है
उसमें वो पहले वाली स्टेट को ओवरराइट कर रहा है उस साइकिल में, स्कैन साइकिल में। हमने पढ़ा था ना एक स्कैन साइकिल में काम करता है। ये किसका डाउट था? आप अन्य यस सर। या देखो बेटा, ये एक स्कैन साइकिल में काम करता है ना पूरा का पूरा ऑपरेशन। यस सर। ठीक है ना, एक स्कैन साइकिल होती है, तो वो एक स्कैन साइकिल की फॉर्म में अगर एक 0 बता रहा है, एक 1 बता रहा है, तो इंडिटरमिनेट बताएगा। लेकिन एक स्कैन साइकिल में अगर ये कह रहा है कि प्रीवियस फॉर्म को लोड करने के बाद आप दूसरी फॉर्म को स्टार्ट कर रहे हो, तो वो लास्ट स्टेट साइकिल की लास्ट स्टेट थी। ये इस पर्टिकुलर साइकिल की लास्ट स्टेट नहीं थी, मतलब इस पर्टिकुलर साइकिल में उसने 0 वैल्यू नहीं दी है, उसने इस स्कैन साइकिल से पहले वाली वैल्यू असाइन करी इसको। वो तो ओवरराइड कर सकते हैं ना हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में, चल यस सर। सकता है। ठीक है ना, मतलब एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हो गया ये, और बहुत ही डीप टाइप की चीज हो गई है ये। अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपको समझ में आया कि ये स्कैन साइकिल में कैसे ऑपरेट करता है। यस सर। ठीक है ना, अब सर देखिए, एक बार फिर से रिपीट। हाँ मैं देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता के दिखाता हूँ। एक प्रोग्राम जिसमें कि आपकी एक एलईडी लाइट को जलना था एक स्कैन साइकिल में, पुरानी स्कैन साइकिल थी, है ना। ठीक है ना, तो पुरानी स्कैन साइकिल में वो 0 पे थी, लेकिन अब जो दूसरी स्कैन साइकिल आई उसमें ये कहा कि इसको जलना नहीं है, बंद होना है, तो वो मान लेगा क्योंकि वो पुरानी स्टेट को तो कॉपी कर लेगा। मतलब समझ रहे हो आप, स्कैन साइकिल एक प्रोसेस साइकिल की तरह मान के चलो आप। एक प्रोसेस में, मतलब एक प्रोसेस जो खत्म हो चुका है उसकी वजह से लाइट जल रही है, ठीक है ना। लेकिन दूसरी साइकिल में ये कह रहा है कि लास्ट स्टेट थी वो तो रखी थी, अब आपको कोई चेंज नहीं हुआ। लास्ट स्टेट का मतलब क्या है कि उसने कोई चेंज नहीं किया उसमें, ठीक है ना। मतलब लास्ट स्टेट जो थी वो चल रही थी पिछली साइकिल से, इसमें उसने चेंज नहीं किया उसको, ठीक है ना। ये कमांड नहीं दिया उसने लास्ट स्टेट का। अगर ये 0 वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, लास्ट स्टेट का मतलब क्या है, उसने कोई कमांड ही नहीं दिया, तो उसके पास अपनी एक वैल्यू जो पहले की थी वो चलती रही, वो लाइट जल रही थी वो जलती रही। अब जो दूसरी स्कैन साइकिल शुरू हुई उसमें आपके I0.1 ने कह दिया कि इस साइकिल को, मतलब इस आउटपुट को Q0.0 या इस लाइट को ऑफ कर दो। तो वो तो लास्ट स्टेट थी, वो जल रही थी, और इस साइकिल में एक उसको एक ही कमांड मिली इस पर्टिकुलर साइकिल में कि हाँ आपको ये बंद करनी है, तो वो बंद कर देगा, ठीक है ना। अब उसके कॉन्ट्ररी अगर दोनों 1 हो गए तो उसी पर्टिकुलर साइकिल में एक कह रहा है कि इसको ऑन रखो, एक कह रहा है इसको ऑफ रखो। मतलब समझ रहे हो, अगर आपके, देखिए फिर से मैं बता रहा हूं आपको, जब आपका I0.0 0 था तब हुआ क्या, आपकी कोई कमांड नहीं गई उस स्कैन साइकिल में, ठीक है ना, ना सेट की गई ना रीसेट की गई, ठीक है ना। इसलिए उसने क्या पिक कर लिया, जो लास्ट स्टेट थी वो लास्ट स्टेट पिक कर ली उसने। लेकिन उसके बाद वो आया I0.1 पे, वहां पे उसने क्या कमांड दी कि आपका Q0.0 की स्टेट 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो उसने कमांड दे दिया कि वो 0 होनी चाहिए, तो वो 0 हो गई, ठीक है ना। ये एक स्कैन साइकिल की बात हो गई। अब दूसरी स्कैन साइकिल में अगर आप देखो तो आपकी I0.0 से कमांड आकर के आ चुकी है, ठीक है ना, कि इसको 0 रखो, और I0.1 से भी कमांड आ रखी है कि इसको 1 रखो। तो दोनों की कमांड को जब वो एक साथ कंपाइल कर रहा होगा तब वो अनडिफाइंड फॉर्म बोलेगा इसको, कि आपके कमांड में ही दो लोगों ने कमांड दे दी है, और जो कि दोनों कमांड क्या है कि एक कह रहा है 0 रखो, एक कह रहा है 1 रखो। समझे ना आप। तो वो जब कंपाइल कर रहा होगा तब वो एरर, मतलब अनडिफाइंड फॉर्म बता देगा। लेकिन इससे पहले वाली स्टेज में जब लास्ट स्टेट ही 1 थी तब उसको कंपाइलेशन, मतलब जब प्रोग्राम में वो कंपाइल कर रहा था तब उसको ये कोई स्टेट का बताया ही नहीं था, उसे केवल एक ही कमांड मिली थी कि इसको 0 करना है, तो वो 0 कर देगा उसको, ठीक है। प्रोसेस में भी तो यही होगा ना, पिछली साइकिल की स्टेट को या तो आप कंटिन्यू रख सकते हो, लेकिन अगर आपको बीच में कोई कमांड मिल गई उसको 0 करने की तो आप उसको 0 भी कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक शुभम था और कौन था? सर
फर्स्ट जीरो I0.0 और I0.1 को 0 0 मिला दोनों को। तो जब I0.0 को 0 मिला तो वो तो लास्ट स्टेट ही रखेगा, क्योंकि कोई हाँ, लेकिन वो उस स्कैन साइकिल में तो नहीं बोल रहा ना। देखो, कमांड देते वक्त वो ये कह थोड़ा रहा है। वो उसने क्या कमांड दिया कि आपको कुछ नहीं करना। ये वाली लाइन जो है, ये वाली जो रंग है, इसने क्या बोला? इसने आपको क्या कहा कि लास्ट स्टेट रखनी है? क्या उसने ये कहा कि लास्ट स्टेट रखनी है, या फिर उसने ये कहा कि कुछ नहीं करना है? सर उसमें करंट नहीं फ्लो होगी तो कुछ नहीं करेगा। वो कुछ नहीं करेगा, जिसकी वजह से लास्ट स्टेट कॉपी होके आ जाएगी, यस सर। लेकिन वो रिटेंटिव होगी नेचर में। फिर I0.1 को 0 जाएगा। हाँ, उसको जीरो जाएगा, लेकिन वहां पे वो मेमोरी में डाल देगा कि इसकी वैल्यू को जीरो कर दो। सर क्यों कहेगा? वो क्यों कहेगा? क्योंकि वो रंग की इंफॉर्मेशन है कि इसको एक्टिव करना है, यस और नो, या एक्टिवेट नहीं करना है, यस और नो। आप सेट और रीसेट, वही चीज को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो कि सेट और रीसेट में अगर फ्लो जा रहा है तब वो कमांड दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जब वो फ्लो जा रहा है तब वो कमांड दे रहा है कि इसको जीरो रहना है या वन रहना है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके सर। ठीक है ना? उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, उस स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? आई कैन स्टिल रिपीट इट, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है मैं फिर से, क्योंकि सर बस ये I0.1 वाले में जब 0 देंगे तो उसको कैसे करेगा कि ये 0 ही रखना है? उसमें भी तो करंट नहीं फ्लो होगी स्टार्टिंग में ही, तो लास्ट स्टेज होनी चाहिए उसका। किसमें कौन से वाले एग्जांपल में बेटा? सर अभी जो लास्ट वाला हुआ था एग्जाम्पल। अ, जिसमें आपको I0.0 और 0.1 दोनों बोले थे उसमें। यस सर। हाँ, तो देखो, उसमें भी आपके पास ओवरराइड तब हुआ था जब आपके डिटर्मिनेट कनेक्शन नहीं थे, मतलब आपको उसके अलावा कोई चीज नहीं मिली थी। कंपाइलेशन के टाइम पे तो वो बताएगा ही ना उस चीज को। स्कैन साइकिल कंप्लीट होगी, स्कैन साइकिल में रंग बाय रंग इंफॉर्मेशन लेगा, उसके बाद वो कंपाइल करेगा, फिर आपको सोल्यूशन बताएगा ना। अगर उसमें दो आंसर क्लैश कर रहे होंगे तब वो अनडिटर्मिनेट स्टेट बता देगा, नहीं तो वो स्टेट को वैसे के वैसे रखेगा। यस सर वो तो है, बट एक बार आप अगर I0.0 और I0.1 में 0 0 डालेंगे तो क्या होगा? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप I0.0। हेलो। हेलो। नॉट ऑडिबल सर। हेलो।
Class, am I audible now? Is my voice clear now? I think there was a network issue. Yeah. Shubham, we will discuss about it after this session. Okay. I completely understand ये डाउट आपको क्यों आ रहा है. मैं बस आपको एक आई डोंट नो मैं कहाँ पे कनेक्शन लॉस कर चुका था, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ फिर से बता दे रहा हूँ. आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो मैं वो भी बता देता हूँ. देखिए, दो केसेस हैं, ठीक है. एक तो आपको एक कॉन्टेक्ट मिला और इसके बाद आपको एक कंडीशन मिली जहां पे वो इसको राइट कर रहा है, ठीक है ना, कि इस सिचुएशन को राइट कर रहा है, ठीक है. यहाँ पे क्या है, अगर फ्लो आएगा तो इसकी सिचुएशन को वो 1 राइट कर देगा, और अगर फ्लो नहीं आएगा तो इसके आउटपुट को वो राइट कर देगा कि इसकी आउटपुट अभी 0 है इस कंडीशन में. सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है. अच्छा, माय बैड. एक मिनट बस. शुभम, अब हो रही है? अब स्क्रीन प्रेजेंटेड है? हाँ, ठीक. ये सर या देखिए, दो कंडीशन है, ठीक है ना. लेट मी यूज रेड कलर पेन. आप इन्हीं दो कंडीशंस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो. सर मैं फर्स्ट 0 करते हैं तो उस वाले में कंफ्यूजन है. हाँ, मैं समझ गया आपकी बात. देखिए, ये दो कंडीशंस हैं. मतलब एक आपका एड्रेस दिया हुआ है, एक आपकी कॉइल को ही एड्रेस दिया हुआ है Q0.0, Q0.0, ठीक है. एक आपकी रीसेट कॉइल बनाई है और उस रीसेट कॉइल को कमांड एड्रेस दिया हुआ है Q0.0 का, ठीक है. अब यहां पे सिचुएशन देखो बेटा, अगर Q0.0 1 है, मान लीजिए किसी स्टेज पे Q0.1 है, ये दोनों अलग कमांड्स हैं, अलग रंग है, ठीक है ना. अलग कमांड है, अलग रंग है. अब यहां पे अगर ये कॉइल 0 कमांड पे आ गई है, मतलब यहां से कोई फ्लो नहीं जा रहा, तो ये यहां पे राइट करेगा कि Q0.0 का जो सिचुएशन है वो 0 है, ठीक है ना. तब वो राइट करेगा कि Q0.0 की सिचुएशन क्या है, 0 है, ठीक है. मतलब क्या होगा, 1 से इसकी वैल्यू क्या हो जानी है, 0, ठीक है. उसके बाद अगर किसी और रंग में जाकर के ये 1 हो जाता, मतलब किसी और स्कैन साइकिल में, वो अलग इशू है. बट अभी के लिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0. यहां पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे फ्लो ही नहीं जा रहा तो Q0.0 को कोई स्टेट ही नहीं बता रहा, मतलब ये कोई स्टेट को चेंज ही नहीं कर रहा. तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये रीसेट को ना बना करके इसकी कंडीशन को क्या रखेगा, 1. मतलब यहाँ पे राइट नहीं कर रहा इसको, ठीक है ना. इस कंडीशन को ओवरराइट नहीं कर रहा है, ठीक है. लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर आपका फ्लो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे अगर आपकी कॉइल के साथ ही इसको, क्योंकि यहाँ तो एक रीसेट कॉइल दी है और उसको कमांड एड्रेस दिया हुआ है Q0.0, ठीक है ना. सेट और रीसेट कॉइल को कमांड एड्रेस दिया हुआ है Q0.0 का. लेकिन बाकी किसी भी एग्जांपल में अगर आप देखोगे, अगर लैडर लॉजिक में भी अगर आप देखो, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है, यहाँ पे इसको एड्रेस दिया जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वो रिटर्न हो जाती है अगर सिंपल कॉइल है. लेकिन अगर आपकी सेट कॉइल आ गई इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो वो राइट नहीं होगी, वो कोई कमांड ही नहीं देगा, इसलिए वो वैल्यू को 0 दे रहे हैं, इसलिए उस वैल्यू को लास्ट स्टेट दे रहे हैं. थोड़ा डाउट क्लियर हुआ शुभम? इन दोनों में फर्क तो समझ में आया तुम्हें?
यस सर। शुभम, यही एक डाउट है जिसकी वजह से आपको डाउट क्रिएट हो रहा है कि वो राइट कर रहा है वैल्यू को या फिर वो कमांड दे रहा है उसको। ठीक है, अभी एक इसी टाइप का डाउट आपको ट्रिगर में भी आ सकता है। अगर यहाँ पे आप देखो ना कि एड्रेस किस चीज से देते हैं और कमांड भी दे सकते हैं हम किसी भी चीज से। ठीक है ना, अभी हम एक और एग्जांपल देखेंगे ट्रिगरिंग का। अगर वहां ट्रिगरिंग में आपको समझ में आ गया तो ये चीज भी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना यस सर। शुभम? यस सर। ठीक है, और अगर डाउट हो और किसी को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, वी कैन अगेन टेक दिस पर्टिकुलर सेशन। हम इसको फिर से भी कर सकते हैं। अभी थोड़ा क्लास का फ्लो ना फिर थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, लेकिन आप इंडिविजुअली या फिर ग्रुप में भी मेरे को डाल दोगे कि हाँ इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दो, तो हम एक सेपरेट सेशन में इसको और अच्छे से बता सकते हैं। अभी मेरे को थोड़ा सा फ्लो खराब हो जाएगा, इसलिए मैं और डिटेल में नहीं बता सकता। लेकिन फिलहाल आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि आप कॉन्सेप्चुअली कहाँ पे उसको 0 या 1 लिख रहे थे। ठीक है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, काफी एक डीप तरीके का चीज है। थोड़ा सा हैवी हो गया होगा थोड़े लोगों को, बट अंडरस्टैंडिंग आप यही बना के चलो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का कमांड जा रहा है। कॉइल है तो कॉइल को वो 0 राइट करेगा, सेट या रीसेट है तो वो उसकी कमांड लाइन देगा कि हाँ तुम 0 हो जाओ या तुम 0 ना हो जाओ। अब वो कमांड लाइन नहीं दे रहा तो लास्ट स्टेटमेंट। एम आई करेक्ट क्लास? So should I continue now, class? Kindly respond. Yes, yes. Okay. इतनी ना वैसे शुभम वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन आयर रखा। काफी डीप अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन आयर है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना ओवर एन एक्सपीरियंस आती रहती है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऑपरेट कर रहे हो किसी सिस्टम को और ये समझ में भी नहीं आ रहा, तो अगर इस स्टेज में आपको चीजें समझ में आ जाती हैं तो इट इज वेरी गुड। ठीक है ना, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग जब करोगे किसी सिस्टम में तब भी ऐसी छोटे मोटे डाउट आ सकते हैं। ठीक है ना, just a minute. Yeah, yes. So let us continue for further solutions now. So again, this is the similar kind of example for in the FBD form. So you can say functional block diagram. You can also make a functional block diagram for this. Okay. Now set reset. Okay, so you can make a flip flop according to it, which is a SR flip flop, where SR is a reset dominant ledge, whereas it is reset dominant. Okay, so you can make an individual flip flop also. When both are 0, it will be last state. When it is 0 and 1, it will be 0. When it is 1 and 0, it will be 1. And it is 1 and 1, then it is reset dominant and it will be 1. No, sorry, 0. Okay, so your output from 2 input, rather than making this kind of ladder logic, okay, rather than making this kind of ladder logic, you can directly use a kind of flip flop, which is just set reset flip flop, and you can answer it, get an output accordingly. Okay, you can also do that. Then reset set. Now you can see that if it is RS, then set is dominant, and if it is SR, then your reset is dominant. Kindly have a look in, kindly focus on this also. When this is an SR flip flop, then it is reset dominant, and when then it is RS, then it is set dominant. The only difference will be, it will be same 0 0 last state, 0 0 last state. Okay. 0 1 it will be 0, 0 1 it is going to be 0. For 1 0 it is going to be 1, and for 1 1 it is going to be 1, but here it is 1 1 is 0, so it is reset dominant. If reset is 1, the state will be 0.
and here it is set dominant. If both are 1, then set is dominant and your condition is 1. The only difference is this. Okay. Now, for any pulse, you can have edges also. Okay. So this is kind of detection, that how it detects. Okay. So it has two addresses associated to it. One is from the address and one is from the memory. Now let us look what kind of trigger it can have. So your pulse can be like this. Okay, so this is your state, this is your zero state, this is your zero state, and this is your one state. This is your one state. Okay, so first was your zero state and this is your one state. Okay, now you can also have edges associated. Okay, so this is your positive state. When your 0 converts from 0 to 1, then this particular edge is called as positive edge. Positive edge. Positive edge. Then we call it positive edge. And if it is from 1 to 0, then this position is called negative edge. This is called negative edge. Okay, so this is your positive edge, this is the negative edge. Okay, so you have your zero state, you have your positive edge, you have your one state, and then you have your negative edge. Okay, so if something triggers a positive edge, this switch is going to trigger a positive edge. Okay, and this switch is going to trigger a positive edge and going to send a pulse according to it. Yes, whenever a positive edge is given, or you can say provided to the address I0.0, now you can see that it is looking at the positive edge from the address, from an address of I0.0. Okay, it is not saying that positive edge is coming through the flow. It is saying that a positive edge should be for the address I0.0, and the memory bit M0.0 will be on for one clock cycle. That memory bit will be on for one particular cycle. Okay, similarly, if there is a negative edge for a particular address I0.1, kindly focus on this also, that I0.1 address should have a negative edge. Okay, so the state of contact is true. Okay, this state of contact will be true when a negative transition is on detected. Okay, and it is detected from a particular address on the assigned bit. Okay, so it is very important for you to understand the definition of this. Let me erase the pen. It says that state of contact is true. This contact is going to be true when positive transition is detected on the assigned bit. Okay, and the assigned bit for it is state of I0.0. Okay, and the bit will be on for one clock cycle. Okay, so it will provide a pulse only when it is triggering the positive edge for the assigned bit, which is your I0.0. And when negative edge is detected, then it will provide a pulse for a particular clock cycle for M0.1 when negative edge is detected from I0.1. Okay, it might look a little bit theoretical, but let us have a look at this. Okay, write a logic to latch the motor when I0.0 goes from off to on, and unlatch the motor when I0.1 goes on to off.
Okay. Now you have a switch I0.0. Okay. When you just on a switch, suppose only for a single pulse, then a positive edge will be provided. When a positive edge is provided, then what will happen? This will give a pulse, this will give a set pulse to Q0.0, and now motor is going to get on. Okay, and it is going to be on, and it will be set for all the time because it is providing a set point to Q0.0. Okay, now you need to unlatch the motor when you get 0.1 on to F off. Okay, now what will happen when you have started I0.0, you have given a positive edge, a positive edge will be detected. Okay, and now if you on 0.1, nothing will happen, but when you off this particular I0.1, a negative edge will be detected. A negative edge will be detected. Okay, a negative edge will be detected, and this negative edge is going to give you a single pulse flown through reset, and this reset is going to get activated and it will command Q0.0 to be off. Okay, so it is very important for you to understand that P triggers, or you can say trigger on a positive edge and N trigger on a negative edge. So I have few questions for you. Now my question to you all is that for example, if there is a positive edge detected, okay, positive edge detected in I0.0, then your let us take this example, which is your scan operand P. Then your scan operand P, will it provide a pulse or will it provide a continuous flow? Will it provide a pulse or will it provide a continuous flow of current? Let me just repeat it. It is going to provide a pulse. Yes, it is going to provide a pulse. Okay, and P, what does P does is P detects the positive edge from an address. This particular P which I am pointing out, it will detect a positive edge from which address? Kindly write the address. I0.0. Yes, very correct. Okay, now this is your P trigger. That was a different thing. Okay, and how P trigger RLO, and that was scan operand, and this is your RLO. Okay, so what does RLO does is that it will provide a current whenever it is going to edge a positive trigger. Okay, in this particular case, what happened was that it was detecting a positive edge from an address of I0.0, whereas in P trigger it is not detecting any edge. Okay, it is not detecting any edge, rather it gets a positive edge either from I0.0 or I0.1. Okay, so it can detect in your P scan, it was detecting from a particular address, whereas here what it is doing, it is just getting a particular input from the flow line, from this particular flow line. Okay, now you can see that here in this particular case you will have a flow line. Okay,
Okay, you are having a flow line and it is working on this particular flow line. Okay, so whenever you are going to on I0.0, then this output will be like this. The flow of current will be like this. There will be a positive edge in the flow and it will detect it and it will continue to pass this state as true. Okay, so this give a power flow or a logic state is true when positive transition is detected. Okay, on the clock power flow. Okay, now in AND trigger, what will happen? If you have started Q0.1, Q0.0, your Q0.1 is off, and then again you off it. When you off this particular position, then it is going to get triggered, and the position is going to be true. Your confusion will be removed when we will take an example related to it. This example, here you have P also, and here you have AND trigger also. Okay, we will look at this particular example also. Okay, meanwhile, let us just have a look at this particular question. So in this question, you had an address of I0.0. You had an address of I0.0. And it might look very easy, or you can say that why we are using different kind of solutions or different kind of, you can say, tabs or functions for similar kind of operation. In this particular example, we are going to see this particular example that why we required it. Okay, so in order to make a single kind of operation, this is required. But at this stage, you can see that in this particular position, you can see that write a logic to latch the motor when either 0.0 or 0.1 goes from off to on. Okay, so now see, if any one of this is going to be from off to on, there is going to be a positive edge in the flow. Okay, and whenever there is a positive edge, this stage is going to be a true, and your set is going to get activated and your motor is going to get start because the command will be given. Okay, now if you want to unlatch it when either 0.2 or 0.3 goes from on to off. Okay, now and this is a little bit confusing. It should not be like this, because we are saying that either 0.2 or 0.3 go from on to off. Okay, so when and either is the situation, here what happened was if both are on, you are going to get a positive edge, but they should be in series. Am I correct or not? Am I correct or not? Whether it should be in series or not? In series. Yes, it should be in series, because it is saying that either 0.2 or 0.3 goes from on to off. Okay, so it can only happen when these both are in series. Then only you are going to get a negative trigger. You are going to get a negative trigger from the flow line. Understood? Is there any doubt? Am I correct? Yes or no? Kindly respond on the chat box. It is 3:23. Yeah, I'm going with the minimum pace that is possible for each and every example. Okay, so even if then you have any doubt, हाँ, मैं ये सीरीज और पैरेलल वाला फिर से रिपीट कर देता हूँ. कोई इशू नहीं है, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ. देखिए, यहाँ पे एक गलती हो चुकी है, ठीक है ना. यहाँ पे गलती क्या हुई है, आप इस चीज को देखिए. यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन है I0.0, I0.1, P ट्रिगर,
मतलब ये पॉजिटिव ट्रिगर फ्लो लाइन से देखेगा कि फ्लो से मुझे पॉजिटिव ट्रिगर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब पॉजिटिव ट्रिगर आपका लॉजिक क्या होना चाहिए? लॉजिक होना चाहिए कि आपका मोटर लैचिंग पे आ जाए जब या तो I0.0 या 0.1 ऑफ से ऑन स्टेट में चला जाए। तो अगर ये दोनों में से कोई भी ऑन है या ऑफ से ऑन कंडीशन में आ गया, ठीक है ना, तो आपको एक पॉजिटिव ट्रिगर मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपकी कंडीशन इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। अभी एक इनिशियल स्टेज 0 थी, इन दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव हो गया तो फ्लो करंट मिलना शुरू हो जाएगा, और फ्लो करंट मिलना शुरू हो जाएगा तो एक पॉजिटिव ट्रिगर आ जाएगी, और वो पॉजिटिव ट्रिगर को एक नहीं, मैं एंड ट्रिगर की ही बात कर रहा हूँ। ये एज को डिटेक्ट करता है बेटा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना, एक 0 स्टेट होगी, एक 1 स्टेट होगी, एक 0 स्टेट होगी, लेकिन ये जो है ये आपकी पॉजिटिव एज है और ये जो है आपकी नेगेटिव एज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 0 से 1 जा रहा है, यहाँ से 1 से 0 जा रहा है। तो ये जो एंड ट्रिगर है ये आपके नेगेटिव एज को डिटेक्ट करेगा। अब मैं फिर मैं वही बताता हूँ। देखिए, अगर दोनों पॉजिटिव आ गए, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, आप मान के चल रहे हो ऑन स्टेट से ऑफ में आए, मतलब दोनों ही ऑन स्टेट में है अभी, तो आपको एक फ्लो मिल रही है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि कोई भी एक अगर ऑन से ऑफ में आ गया, तो मान लीजिए I0.2 ऑफ में आ गया, बट I0.3 तो ऑन स्टेट में है ना। जब I0.3 ऑन स्टेट में है तो फिर क्या होगा, आपको करंट तो यही मिलेगा, करंट तो यही मिलेगा। एम आई करेक्ट और नॉट? नेगेटिव ट्रिगर का मतलब क्या है कि नेगेटिव ट्रिगर अगर नेगेटिव एज होगी, अगर नेगेटिव एज होगी तो यहाँ से पल्स को दे देगा कि हाँ एक पल्स दे दी। यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर होगी तो एक पल्स दे देगा कि पास कर दो इसको, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो तो ये क्या कह रहा है, द क्यू आउटपुट पावर फ्लो और लॉजिक स्टेट इज ट्रू when a negative transition is detected in the clock path, ठीक है ना। मतलब इसकी पोजीशन ही 1 हो जानी है एक क्लॉक साइकिल के लिए, ठीक है ना। मतलब एक पल्स ही ट्रू हो जाएगी इसके लिए एक क्लॉक साइकिल के लिए, कब? जब एक नेगेटिव एज डिटेक्ट होगी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, इस केस में हम दो एंट्री का आरएलओ यूज नहीं कर सकते, मतलब एक्स के लिए अलग और वाई के लिए अलग हो। हाँ नहीं, हम आरएलओ तो आप किस चीज के रेफरेंस में बोल रहे हो? लाइक एक्स के साथ मैं एक एंट्री कार्ड आरएलओ यूज कर लेता हूँ और नीचे वाले वाई के साथ एक और एंट्री कार्ड आरएलओ यूज कर लेता हूँ। अच्छा, नहीं आप वो तो कर सकते हो, और दोनों आउटपुट का मतलब और ले लूंगा, और ले लूंगा। just a minute, I think there is someone, just a minute, just give me a minute. क्लास, हाँ ऋतिका आप क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कि एक्स और वाई दोनों के साथ दो अलग अलग नेगेटिव एज ट्रिगर आरएलओ यूज कर लेते हैं और लास्ट में जो भी आउटपुट आएंगे दोनों के उनका और ले लेंगे, और कोई एक भी नेगेटिव डिटेक्ट हो गई तो रीलैच कर देगा उसे। हाँ आप वो भी कर सकते हो, मैं वही कह रहा हूँ। इससे पहले किसका कंफ्यूजन था? मैं उसका कंफ्यूजन, ऋतिक आपसे पहले जो ये कह रहा था कि मुझे अच्छा नयन, नयन बेटा एक चीज यहाँ पे देखो, एंड ट्रिगर का मतलब क्या है, आप वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि एंड ट्रिगर क्या कर रहा है, आप वो देखो पहले।
एंड ट्रिगर क्या करेगा, देखिए एंड ट्रिगर मान लीजिए ये आपका एंड ट्रिगर है, ठीक है ना। तो एंड ट्रिगर अभी एक ब्लैक बॉक्स अप्रोच आप बना के चलो, आप कुछ मत देखो कि इसके आगे क्या लगा है पीछे क्या लगा है। यहाँ पे इसको एक इनपुट मिल रहा है, एक आउटपुट है, ठीक है ना। अब इसको अगर इनपुट में किसी भी तरीके से एक नेगेटिव एज मिल गई, मतलब आपकी जो इनपुट की स्टेट है जो इसके अंदर जा रही है ये नेगेटिव मिल गई, तो ये फ्लो को पास नहीं करेगा, ये यहां से आउटपुट की वैल्यू को ट्रू कर देगा और एक पल्स भेज देगा, ठीक है ना। ये फ्लो को, ये कांटेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा कि फ्लो को पास होने देगा, ये एक पल्स भेज देगा, ठीक है ना। नयन, आपका जो डाउट था वो यही था कि यहाँ पे आप ये सोच रहे थे कि अगर नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव को पास करने देगा, ये एनो कांटेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा, ये उससे दूसरा काम कर रहा है, ये यहाँ पे पल्स दे रहा है, ठीक है। आप समझ गए अब? नयन, आपका डाउट क्लियर हो गया ना? हाँ ऋतिक, अब हम आपके पास आते हैं। ऋतिक, आप ये कह रहे थे कि आप ये चाह रहे हो कि यहाँ पे भी एक एंड ट्रिगर लगा दूं, और ये आप ये कह रहे हो कि इस लाइन को ना लगा के यहाँ पे मैं एक एंड ट्रिगर लगा देता हूँ और एक तरीके से और गेट की तरह इसको रीसेट कर देता हूँ, यही काम कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, ये भी काम कर जाएगा, ये भी बिल्कुल काम कर जाएगा, आप ठीक कह रहे हो, ये भी काम कर सकता है। और हम शुभम से ही आई थिंक बात कर रहे थे, जब शुभम के साथ बात कर रहे थे कि ये वाला सिस्टम काम नहीं करेगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा। कि क्यों हो जाएगा ये गलत? क्योंकि अगर कोई भी चल रहा होगा तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव एज जाएगी ही नहीं, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव एज जा ही नहीं रही है, क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि यहाँ पे एक और गेट लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी एक को भी ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे किसी एक को भी ऑफ कर दोगे तो एक तो चल रहा है ना, तो आपकी स्टेट तो पॉजिटिव की पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव आएगी ही नहीं। इसकी वजह से क्या होगा कि नेगेटिव ट्रिगर एक्टिवेट होगा ही नहीं मिलेगा। तो या तो एक solution था, या सकते हैं, ये भी सकते हैं कि x या y को यहाँ पे सीरीज में लगा दिया। अब सीरीज में लगा दिया तो क्या होगा, किसी भी एक को आपने ऑन से ऑफ स्टेट में डाल दिया, ठीक है, किसी भी एक को आपने ऑन से ऑफ की स्टेट में डाल दिया तो क्या होगा, ये सर्किट तो फ्लो ही नहीं कर रहा, ये वाला सर्किट फ्लो नहीं करेगा, तो क्या नेगेटिव ट्रिगर मिलेगी? इसको मिल जाएगी, तब तो पॉजिटिव से जीरो स्टेट आ जाएगी ना इस पे, क्योंकि कोई फ्लो ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये रीसेट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको, एक ब्लैक बॉक्स अप्रोच की तरह आप लेके चलो। पी ट्रिगर कुछ नहीं कर रहा, पी ट्रिगर इनपुट से केवल एक पॉजिटिव एज को देख रहा है बस। अगर इसको पॉजिटिव एज मिल जाती है तो ये एक पल्स को पास कर देगा, एक क्लॉक साइकिल की एक पल्स को पास कर देगा। नेगेटिव ट्रिगर कुछ नहीं कर रहा, वो इनपुट में जाकर के देख रहा है कि मुझे नेगेटिव एज मिल रही है हाँ या ना। अगर उसको वो एक नेगेटिव एज मिल जाती है तो वो एक पॉजिटिव पल्स पास कर देगा। कंटिन्यूअस। अब समझ में आ गया आप लोगों को? क्लास, आर यू अलाइन्ड नाउ? नयन ने 323 पे कहा था क्लास। अब समझ में आ गया? अगर किसी को भी डाउट है हम एक बार और रिपीट कर देंगे, कोई इशू नहीं है, समझ में आना बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी सर। यस अभय बोलिए। सर मुझे एक डाउट है, जैसे ये पैरेलल वाला जो हमने पहले रखा, ये डायग्राम लिख रखा है यहाँ पे, तो अगर ये जो 0.2 में है इसमें अगर पॉजिटिव एज है और 0.3 में नेगेटिव एज है, तो ये जो ये एंड ट्रिगर्ड वाला है फ्लिप फ्लॉप, मतलब मेमोरी 2 है, तो ये कैसा कंसिडर करेगा?
अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एज की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्टेट की बात, ठीक है ना। हम एज की बात तो करेंगे एंड ट्रिगर के लिए, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि एक ऐसी स्टेज आई जहां पे आपने Q0.1 को नेगेटिव एज आ गई, है ना, ये जो कह रहे हो आप। वो I0.2 को, सॉरी, I0.2 नेगेटिव आ गया और ये नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया, यही तो कह रहे हो आप। हाँ, यस सर। मतलब क्या हुआ कि उस इंस्टेंट पे क्या हुआ, आपने I0.2 को बंद कर दिया और 0.3 को ऑन कर दिया। यस सर। मतलब हुआ ना, इसका मतलब आपका आउटपुट क्या रहा, फ्लो क्या रहा, फ्लो आपका ऑन था इस स्टेट में और इस स्टेट में भी आपका फ्लो ऑन है। यस है ना, तो उसको कोई एज मिली, आपके आपके इनपुट पे एंड ट्रिगर पे कोई एज मिली? नहीं सर, नहीं मिली, पॉजिटिव रहेगा। तो वो एज नहीं मिली तो वो कुछ ट्रिगर ही नहीं करेगा उसको, ठीक है, समझ गए आप? अब है, यस सर, यस सर। है ना, मतलब इसको स्टेज देनी है आपको, ठीक है ना। जो हमने पहले देखा था ना, वो RLO की जगह पे स्कैन ऑपरेंड, ये क्या कर रहा था, ये इनके एड्रेस को देख रहा था बस, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ के फ्लो को देख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर आप देखो तो यहाँ पे ये इसके फ्लो को नहीं देख रहा था। अब देखो यहाँ पे तो हमेशा पॉजिटिव फ्लो आ ही रहा है, कोई ट्रिगर ही नहीं आ रहा, लेकिन इस वाले में ये I0.0 के स्टेट को देख रहा था। जबकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे जो कंसिडर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कंसिडर यहाँ फ्लो को कंसिडर कर रहे हैं कि फ्लो में नेगेटिव एज आ रही है, हाँ या ना। क्लास, एम आई ऑडिबल? हेलो, कनेक्शन का इशू पता नहीं क्या चल रहा है। कनेक्शन आ गया या 338? यस यस यस, ओके ओके ओके। So where were we? I think there was a connection network issue. कनेक्शन में थोड़ी सी इशू आ रहे हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन की वजह से भी है थोड़ा सा। हाँ, तो अब आई थिंक नाउ यू नो दैट what is the difference between your P trigger and trigger scan RLO and your, what we say, positive and negative scan operand, okay? And now you know कि जो आपका P scan operand है वो एक assigned bit पे काम करेगा I0.0 की, ठीक है।
और आपका जो RLO है वो फ्लो की सिचुएशन पे काम करेगा. ठीक है. So class, let us take a quick break. We will meet at 3:55 now. ये थोड़ा heavy सा session रहा है ये. So I think you need a break also. So we will meet at 3:55. तब तक आप कोई भी डाउट हो मेरे से क्लियर कर लीजिएगा. Okay. Let us meet at